بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ دو تین اہم معاملات ہیں جو آج پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک سینیٹر اعظم سواتی صاحب کی گرفتاری۔ اعظم سواتی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور جب انہیں آج پیش کیا گیا عدالت میں تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس ٹویٹ کی پاداش میں مجھے گرفتار کیا گیا، اور انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان پر نہ صرف یہ کہ تشدد کیا گیا ہے بلکہ انہیں برہنہ کیا گیا ہے۔ اور اس بیان کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کی جو تمام قیادت ہے، عمران خان صاحب کے بشمول، انہوں نے اس کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اعظم سواتی صاحب ایک بزرگ شخصیت ہیں، سینٹ آف پاکستان کے ممبر ہیں، سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ کون سے انسانی حقوق ہیں اور کون سی باتیں، اور ٹویٹ کرنے کے اوپر گرفتار۔ تو ایک ٹویٹ کی غلطی تھی، اور کیا ٹویٹ اگر غلط کیا گیا تھا تو اس کے بعد کیا ان کی گرفتاری غلط تھی یا نہیں تھی، یا سب کو احتیاط کا دامن ساتھ لینا چاہیے کیونکہ قانون نے تو حرکت میں آنا ہے۔ اس معاملے پہ گفتگو کریں گے۔ وفاقی حکومت گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور معاملہ یہ ہے کہ 25 مئی کو عمران خان صاحب جو اپنا لانگ مارچ تھا اپنے کارکنوں کے ہمراہ جو ڈی چوک ہے اس کی طرف پہنچے تھے، جو سینٹرس مال ہے اس کے سامنے انہوں نے اپنا آخری خطاب کیا، واپس چلے گئے۔ لیکن حکومت کا موقف یہ ہے کہ عدالت کی کلیئر ڈائریکشنز تھی، اور ڈائریکشن یہ تھی کہ انہوں نے فلاں مقام کے اوپر پہنچنا ہے اور وہاں پر بیٹھنا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اس کی وائلیشن کی، توہین عدالت کی۔ تو ظاہری اسباب یہ ہیں، لیکن جو پس منظر لگتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ عدالت سے عمران خان کے لانگ مارچ سے قبل کوئی ایسی چیز حاصل کر لی جائے تاکہ انہیں ایک مرتبہ پھر پابند کر دیا جائے کہ وہ ایک مخصوص مقام تک آئے اور ریڈ زون کی جانب رخ نہ کریں۔ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جو کل بات کی کہ میری حکومت ضرور تھی مگر طاقت میرے پاس نہیں تھی، یہ اختیار میرے پاس نہیں تھا، تو عمران خان صاحب کے ماضی کے بیانات اور یہ جو کل کا بیان ہے اس میں واضح تضاد ہے، کیونکہ وہ جب حکومت میں تھے تو کہتے تھے کہ میں با اختیار وزیر اعظم ہوں، اور آج احسن اقبال صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے کہ پاکستان کے مضبوط ترین وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب جب وہ اپنی حکومت کر رہے تھے۔ سوات میں بھی جو امن کے حوالے سے لوگ نکلے ہیں، بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پر آئے ہیں، دہشت گردی مردہ آباد اور امن زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں، اور یہ کسی سیاسی پارٹی کا مارچ نہیں تھا، کوئی سیاسی قائد اس کو لیڈ نہیں کر رہا تھا۔ تو جو سوات میں امن و امان کی صورتحال اور خیبر پختونخوا میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ کس جانب جا رہی ہے اور بہت سنجیدگی کی متقاضی ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار محترم جناب عمار مسعود صاحب، مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی نوابزادہ افتخار صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما یاور عباس بخاری صاحب۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ عمار مسعود صاحب، یہ اعظم سواتی صاحب کی گرفتاری کا معاملہ، کیونکہ یہ جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی اور یہی پیکا آرڈیننس کے تحت یا ایکٹ کے تحت جب گرفتاریاں ہو رہی تھی تو بہت شور تھا کہ یہ اظہار رائے پر قدغن لگانے کے مترادف ہے۔ اب اعظم سواتی صاحب کا ٹویٹ ایک خاص پس منظر میں کیا گیا، اور اس کے بعد گرفتاری، اور اس گرفتاری کے بعد اعظم سواتی صاحب کا یہ کہنا کہ ان پر تشدد کیا جانا اور انہیں برہنہ کرنا، اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، بہت شکریہ آپ نے مجھے پروگرام میں دعوت دی۔ اس معاملے کے 3-4 اینگلز ہیں، ان سارے اینگلز کو ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا اینگل تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ٹویٹ کرتا ہے کسی ادارے کے خلاف، کسی شخص کے خلاف، اور وہ طاقتوروں میں شامل ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو کوئی تعدیب، سزا یا اس کو خلاف ایف آئی آریں اور جو عدالتی چکر ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ آزادی اظہار کے خلاف ہے، اس کی اسپرٹ کے خلاف۔ لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے ٹویٹ کر دیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو پکڑ لیا۔ اس معاملے کی کمپلیکیشن بہت زیادہ ہے۔ ایک خاص طریقے سے افواج پاکستان اور خاص طور پہ پاکستانی افواج کے سپہ سالار جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف ایک کیمپین شروع کی گئی ہے۔ اس کا آغاز ہم نے دیکھا ٹویٹر ٹرینڈز کی مدد سے شروع میں ہمارے سامنے نظر آیا۔ جیسے ہی عمران خان صاحب حکومت سے اترے تب سے وہ جو ہے امپورٹڈ حکومت اور جناب باجوہ کے خلاف ٹرینڈ ہمیں نظر آئے۔ پھر اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ شہباز گل جیسے شخص نے بڑی فصاحت کے ساتھ، پوری تسلی کے ساتھ 15 منٹ کا ایک چینل پر بیپر دیا، اور اس بیپر میں
बेसिकली जो लोअर रैंक्स के लोगों को उकसाया गया कि अपनी क़यादत से बगावत करते, जो कि फौज में कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, तीसरा एंगल ये है कि पंजाब में हाशिम डोगर साहब ने, वजीर दाखिला ने इस्तीफा दे दिया इस बुनियाद पर कि इमरान खान वहां पर लोगों से ये कह रहे हैं कि जब लॉन्ग मार्च निकलेगा तो आप वहां पर जनरल बाजवा के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ नाराबाजी करेंगे और उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, और उस एहतजाज में तशद्दुद का उनसर होना नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अब ये सूरत हाल आ गई है आजम सवाती साहब की, इन्होंने जनरल बाजवा को इल्जाम दे दिया। इस जो ट्वीट है उसके हवाले से भी मुख्तलिफ कॉनोटेशन है। पहली बात तो ये है कि वो सीधा सीधा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत को जनरल बाजवा से एसोसिएट कर रहे हैं, और ये कि आप ये इम्पोर्टेड हुकूमत लाए और आपने ही मुजरिमों, चोरों, डाकुओं को बरी करवा दिया, जो कि हकीकत के मनाफी बात है। इसलिए मनाफी इसलिए है कि एस्टैब्लिशमेंट ने मौजूदा हुकूमत का साथ नहीं दिया, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने गुज़िश्ता हुकूमत से अपनी बैसाखियां छीन ली। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है एहसन इकबाल साहब की कि जिस कदर ज्यादा सहारा इमरान खान को दिया हुआ था, तारीख में कभी किसी वजीर आजम को इतना सहारा नहीं दिया। अब जब वो न्यूट्रल हो गए हैं, जो कि हमारी हमेशा से ख्वाहिश थी कि अफवाज पाकिस्तान को न्यूट्रल होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। इमरान खान को ये रास नहीं आ रहा। उनके अपने वजीर आला के इस जमाने में कहा करते थे कि इमरान खान की अब यही ख्वाहिश है कि उनकी नीतियां तब्दील की जाए। 4 साल हुकूमत करने के बाद पूरे कंट्रोल के साथ अपने मुखालफिन को जेलों में डालने के बाद अब इस तरह की कैंपेन करना आजम सवाती के हवाले से मुनासिब नहीं है। फिर अभी मैंने एक मेडिकल रिपोर्ट देखी, मैं पूरी तरह अभी इस प्रोग्राम में तस्दीक नहीं कर सकता, और उसमें यह बताया गया है कि आजम सवाती पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि लोगों को एक खास एंगल से भड़काया जा रहा है ताकि लोग फौज के खिलाफ हो जाए। अगर ये बात होती कि आईन पाकिस्तान पर अमल करने की बात होती तो मुख्तलिफ था, लेकिन इमरान खान आईन शिकनी पे मजबूर करने का कह रहे हैं। ठीक है हमारे साहब, आपको पॉइंट आ गया। मैं शॉर्टली एक मुझे अगर सेंटेंस पे दे दें, क्योंकि या चले मैं वापसी पे आपसे पूछता हूं, पहले मैं यावर साहब का मौक़िफ़ ले लूं। यावर साहब, अम्मार साहब का कहना यह है कि एक आजम सवाती साहब का जो ट्वीट है वो एक मेलाफाइड कैंपेन की कंटिन्यूटी है, और उस कंटिन्यूटी की वजह से ये सब कुछ हुआ है उनके साथ। और खान साहब के जो चीज़ें हैं वो ऐसा लगता है कि जो आपका लॉन्ग मार्च है वो भी बिल्कुल, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें नामुमकिनात में शामिल नहीं है, फौज मुखालिफ नारों से लेके तशद्दुद के उनसर तक। दो बातें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मैं अमार साहब से इत्तफाक नहीं करता। अमार साहब की जो तज्जिया था, मैं उसके बारे में तो मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए, हालात उनके सामने होते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह नज़र भी आ रहे हैं कि एक्सपीरियंस है, और इतना इर्रिस्पॉन्सिबल तज्जिया किया इनने, जिसके अंदर इन्होंने ये बात कही है, आजम सवाती को फिलहाल छोड़ दें, कि इमरान खान ने लोगों को जनरल बाजवा के खिलाफ, फौज के खिलाफ नारे लगाने का कहा है। फिर इसके अंदर तशद्दुद भी शामिल है। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानता हूँ कि ये सफ़ेद झूठ है, क्योंकि मैं तकरीबन हर मीटिंग में शामिल होता हूँ। ऐसी बात कभी भी नहीं हुई। और हम जो फौजी खानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, हम जैसे लोग अगर ये बात कर रहे हैं, तो मैं अम्मार साहब के तज्जिए पे मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ कि टीवी पे बैठ के हकीकत को कैसे ट्विस्ट किया जाता है, और ये मीडिया के तज्जिया निगार और मीडिया के जो बाकी लोग हैं, मैं जो भी ऐसे करता है, देखें, अल्लाह पाक को हम लोगों ने जान देनी है, जवाब उसको देना है, ना जनरल बाजवा को देना है, ना इमरान खान को देना है। इस मुल्क की मोहब्बत हमारी एक एक कतरे में होनी जरूरी है, मैं समझता हूँ वाजिब है। और उसके अंदर ना जनरल बाजवा की मोहब्बत मुल्क से ऊपर है, ना इमरान खान की, ना नवाज शरीफ की, ना जरदारी की। तो बातें वो की जाएं जो इस कौम को दुरुस्त सिमत पे लेके जाए, ना वो बातें की जाए जो सिर्फ एक तबके को खुश करे और एक तबके को
रगड़ने की कोशिश करे। मुझे नहीं पता उन्होंने ये बातें क्यों की, लेकिन मैं उनसे पूरी बहस कर सकता हूँ। अगर वो बहस करना चाहे, मैं और वो दोनों इसी प्रोग्राम पे बैठ जाते हैं और एक एक चीज की बहस कर लेते, तो मुझे दुख हुआ। ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गैर जिम्मेदाराना बातें हैं, और एक तजिया निगार जब ऐसी बात करे तो दुख होता है। फिर हम लोग जिस तरफ हमारे जो नेगेटिव लोग बैठे होते हैं, वो हर पार्टी में होते हैं, वो फिर गंदी बेहुदा बातें शुरू कर देते हैं। और मैं अमार भाई से ये तवक्को नहीं करूंगा कि वो दोबारा ये ऐसी बात करे। अगर है कोई बात तो मुझसे बहस कर ले, आई एम रेडी। जहां तक बात है आजम स्वाति की, देखें जो बात की अमार भाई ने शहबाज गिल की, मैं 100% एग्री करता हूँ कि शहबाज गिल का एक गलत वो बयान था, कभी भी नहीं होना चाहिए। हमारी अफवाज अवामी फौज है, हमारी फौज को लोग मोहब्बत करते हैं, लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं। कभी भी उनकी इज्जत कभी मजरू नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई जनरल करे अपनी हरकतों से, चाहे कोई वज़ीर आजम करे, चाहे कोई ऑपोजिशन लीडर करे, कोई जज करे। देखें हिस्ट्री में है कि जो जनरल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा एतबारी होते हैं बादशाह के या प्राइम मिनिस्टर के या प्रेसिडेंट के, और वो होते हैं कि जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है, स्टेट डिपेंड करती है। जो बात तो आजम साहब को भी ट्वीट नहीं करना चाहिए था बुखारी साहब? मैं कहता हूं कि किसी को भी ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए जिसके अंदर बगावत का या कोई ऐसा आंसर हो। मैंने आजम स्वाति का ट्वीट नहीं पढ़ा, अगर मुझे दिखा दे तो मैं उसके ऊपर कमेंट दे दूंगा फौरन। लेकिन ये बात करना कि नेपी चेंज करना और ये करना, ये तो नेगेटिव लोगों की बातें हैं। मैं अमार भाई से एज ए तजियाकार नेगेटिव ज़हनियत मैं तवक्को नहीं कर रहा कि नेपी चेंज और ये करना और वो करना, ये बातें अमार भाई अभी मैं आपके दौरान मैंने बात नहीं की थी, प्लीज आप फिर बात कर। मैं एक नुकता बता रहा हूं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मेरी फ्लो खत्म हो गई। तो ये नेपी चेंज करना, ये करना, मैं भी ये शुरू कर दूं। यावर साहब जो मैं जरा आपको आखिरी बात, अगर मैं ये बोलूं कि नवाज शरीफ को जनरल जिलानी ने अपनी गोद में बिठा के परवान चढ़ाया, और ये क्योंकि वहां पे गवर्नर हाउस में एक ग्लोरीफाइड, एक बड़े खूबसूरत और एक बड़े अमीर चाय देने वाला बच्चा था, जिसको मियां शरीफ से ने लेकर इसको परवान चढ़ाया, उसके बारे में तो आज तक मैंने कभी नहीं सुना। मैंने अमार भाई से ये नहीं सुना कि नून ने क्या गलतियां की कि जाके सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर दावा बोला। 3 आर्मी चीफ के खिलाफ इन लोगों ने वो तौहीन अमेज हरकतें की जो हम लोगों ने तो की ही नहीं अभी तक। फिर इन लोगों ने ये बोला कि ये हमने बोला, नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा का इनका नाम लिया। तो ये चीजें जो मैं देख रहा हूँ वो कहाँ पे किस जुमरे में आती है, उनको क्यों भूल जाते हैं? और फिर ये बातें करना कि मुझे 1 रुपए चीज महंगी हो तो मुझे बड़ा दुख होता है, और अपने चाचे को कह रही है कि भाई चीजें महंगे करने का कोई तरीका निकाले। मतलब ये कोई बातें करने की बच्चों वाली हरकतें हो रही है, और हमारे तजिया निगार इस किस्म की बातें कर रहे हैं। चलो यावर भाई आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा मेरे जैसे बंदों को ये हमारी रहनुमाई करे, ये तजिया निगार हमें बेहतर एजुकेट करे, हमें तालीम दे, हम हाजिर हैं। अब आजम सवाती साहब का ट्वीट, आप मुझे ये बताएं, जो मौजूदा हालात हैं, थोड़ा सख्त ट्वीट है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरीके से वो जो गवाहान थे, जिस तरीके से उनकी अमवात हुई, और जिस ओपन एंड शट केस है ये मनी लॉन्ड्रिंग का, और ये पूरे जहान को पता है, लेकिन उसमें बाजवा साहब कहां से आ गए बुखारी साहब? उसमें बाजवा साहब कहां से आ गए? जो नहीं, एक जो नॉर्मल तरीकाकार लिया जाता है सियासतदानों में, वो ये लिया जाता है कि जनरल बाजवा के पीछे हमदर्दी होगी, इनके पीछे मनूवरिंग होगी, जजेस को कहना होगा। हमें इस चीज के अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं आजम स्वाति साहब को भी, मैं जो मुझे मिले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए चीज को, क्योंकि गवाहान मौजूद नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो गए तो वो केस फाइल हो गया। चले, मैं आपका बड़ा तफसील पॉइंट आ गया। मैं नवाबजादा साहब से बात कर लूं, फिर अम्मार साहब जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे आपकी गुफ्तगू पे। नवाबजादा साहब, ये आजम सवाती साहब पार्लियामेंटेरियन, फिर गिरफ्तारी, तो ये कहते हैं जी फस्ताई हथकंडे आपकी हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, तशद्दुद और इस तरीके के मामलात, ये क्या है सर? देखिए, अपना जहाँ तक आजम सवाती साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि उन पर कोई तशद्दुद हुआ है या ये सारा मसला, तो मेरा ख्याल है कि अदालत को इंक्वायरी करानी चाहिए, और इसकी रिपोर्ट भी, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी तकरीबन मेरे ख्याल आ चुकी है कि किसी किस्म का
तशद्दुद नहीं हुआ। जी अम्मार साहब और ने बताई बात। जी, तो ये चीजें हैं, मगर अगर इस किस्म की कोई चीज हुई है तो जरूर इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए जी। अच्छा, और दूसरा जो अब अम्मार उनका साहब, जो well said. ट्वीट है उस पर आपका रद्द अमल क्या है सर? देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक है कि इस किस्म के ट्वीट्स करना, और फिर ये अगर गलती आजम सवाती साहब से हुई है या ये एक ट्रेंड चला हुआ है। इससे पहले भी हमारे शोहदा कराम जो इसके ऊपर सैलाब वाले मिशन पर थे, उनका हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ, तो वो देखें, वो ट्रेंड चले, बड़े बड़े अफसोसनाक थे। और फिर मुसलसल एक इदारे को टारगेट करके ये सारा कुछ किया जाता रहा। हमें चाहिए कि पॉलिटिकल मामलात को पॉलिटिकल उसमें रखें, इदारों को इन्वॉल्व ना करें और उन्हें अपना काम करने दें। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें अपना काम करना चाहिए। एक पार्लियामेंट है, लोग 22 करोड़ आवाम ने हमें मुंतखब करके भेजा है, वहां बैठ के अपने मसाइल को हम हल करें। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, इससे बड़ा तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है पाकिस्तान में पार्लियामेंट से। तो जी हाँ, तो हमें बैठ के जिस मकसद के लिए हमें मुंतखब किया गया है, तो हम लोगों के मसाइल हल करें। कितना बड़ा सैलाब आया हुआ है, तिहाई हमारा मुल्क डूबा हुआ है पानी में, और करोड़ों लोग हमारे इससे मुतासिर हैं। इंग्लैंड जितनी जो उसका वो है रकबा है, उतना तुम्हारा मुल्क डूबा हुआ है। तो इस सूरत में आप देखें कि 80% दुनिया के ममालिक जितनी हमारी आबादी मुतासिर हुई है, इससे छोटे हैं। तो हमें इन चीजों का एहसास करना चाहिए, हमें इधर इस मसले में आना चाहिए और हमें इससे परहेज करना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो जो गुफ्तगू है इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, अम्मार मसूद साहब और यावर बुखारी साहब मेरे मेहमान हैं। अम्मार मसूद साहब, बुखारी साहब ने कहा इसके ऊपर मैं आपका जो रद्द अमल है वो, और साथ में एक चीज और ऐड कर लें, वो ये कि सख्त बयान तो बड़ा एतजाज एहसन साहब ने भी दिया। तो ये डिबेट हो रही है कि एतजाज एहसन साहब करे तो उन्हें कुछ ना कहा जाए, और आजम सवाती साहब उससे कदरे कोई हल्का बयान दे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। बेसिकली ना कुछ क्वार्टर को जानबूझकर नाराज किया जा रहा है। मेरे जो दोस्त हैं यावर साहब, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने मेरे जवाब के हवाले से ही बहुत सी गुफ्तगू की, तो मैं उसका पूरी तसल्ली से जवाब दूंगा। मुझे उनकी बात ये अच्छी लगी कि उन्होंने बहुत सलीके से बात की, और मतलब कोई हर्ज नहीं है, दो लोग सलीके से एक बात पर इख्तलाफ कर सकते हैं। माजी में, और हाफिज साहब आप भी जानते हैं, जिन तहरीके इंसाफ के लोगों से मेरा आपका वास्ता पड़ा है, उनके पास सबसे बड़ी दलील गाली होती है, और इसका एक जमाना शाहिद है, सिर्फ मैं और आपने। तो वो जो है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने बहुत तमीज से, बहुत तरीके से इख्तलाफ किया। जो चंद बातें इन्होंने की कि इमरान खान की तरफ से फौज के खिलाफ कोई ऐसी कैंपेन नहीं है। अगर आप जरा उन ट्रेंड्स को मुलाहिजा करें जो जनरल बाजवा के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के बाद क्रिएट किए गए थे, और बड़े लॉन्ग लास्टिंग ट्रेंड थे, 2-3 घंटे के बाद खत्म नहीं किए थे, उसके पीछे जो कुव्वतें थी उनको अगर सामने लाने की कोशिश करें तो इमरान खान की शख्सियत ही सामने आएगी। दूसरी बात यह है कि न्यूट्रल होना हमने हमेशा से सुना, हमारी हमेशा से ख्वाहिश थी कि फौज का किरदार पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत में न्यूट्रल होना चाहिए। इमरान खान ने इस लफ्ज को गाली बना दिया। अब वो कॉलेजों में जाकर लोगों को ये कहते हैं, उस बयान के बाद जब DGI-SPR की तरफ से आया कि अब हम न्यूट्रल हो गए हैं, बच्चों से पूछते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम कौन है, और जब बच्चे आगे से नारा लगाते हैं न्यूट्रल न्यूट्रल, तो इमरान खान के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट होती है। इमरान खान अक्सर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का जिक्र करते हैं, और उन्होंने कहते हैं कि वो मेरे इलेक्शन हरवाने के पीछे हैं। तो ये बात कहना कि इमरान खान साहब इस कैंपेन के पीछे नहीं है, ये तो मेरे ख्याल में सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। कोई जलसा, कोई तकरीर, कोई चीज पकड़ लें, अमेरिका के पिट्ठू कौन है, मीर जाफर, मीर सादिक कौन है, इंपोर्टेड हुकूमत के पीछे छुपे हुए लोग कौन है, इमरान खान एक खास तरफ इशारा कर रहे हैं, और उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रख रहे। बुखारी साहब कहते हैं कि ये सब काम मुस्लिम लीग नून भी करती रही है, आप उनको कुछ नहीं कह रहे, सब नजला हम पे गिरा रहे। जो एक सवाल
लेट मी फिनिश बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये बात दूसरी सियासी जमातें भी कर रही हैं। गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा का नाम लिया था, लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क है जो जिसे अगर आप समझें तो वो बहुत बड़ा फर्क है। वो पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत का बुनियादी फर्क है। नवाज शरीफ ने जब जनरल बाजवा का नाम लिया था तो उन्हें इल्जाम दिया था कि ये तोहफा आप लेकर आए हैं और इसको आप ही संभालें। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में एक नारा लगा था, वोट को इज्जत दो, पार्लियामान की बेहतरी की बात करो, पार्लियामान की सुप्रीमेसी की बात करो। इमरान खान का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने कभी उनसे आइन की, कानून की, पार्लियामान की सुप्रीमेसी की बात नहीं सुनी, या जमहूरियत की सदाकत या जमहूरियत की अहमियत की बात नहीं सुनी। वो क्या कह रहे हैं? वो इल्जाम ये दे रहे हैं कि आप न्यूट्रल क्यों हैं, और मेरे ख्याल में जो कि बड़ी गलत बात है। दूसरा, वो जो नैपियों वाला जुमला, वो मेरा जुमला नहीं है, वो परवेज इलाही साहब ने कहा था, जिससे तहरीके इंसाफ ने वजीर आला बना दिया। तो उस जुमले का इल्जाम मेरे ऊपर नहीं आता। सारी सियासी जमातें एक स्टेज पर एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आई हैं, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन फिर उसके बाद कुछ जमातों ने सबक सीख लिया है। मीसाक जमहूरियत से पहले जो दो बड़ी सियासी जमातों ने एक दूसरे से के साथ किया, जमहूरियत के साथ किया, वो कतन काबिल तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ उस मंजर को सामने रखेंगे तो इसका मतलब है कि हम अधूरा सच बोल रहे हैं, जो झूठ से भी खतरनाक है। उसके बाद मीसाक जमहूरियत हुआ, उसके बाद चीजें बेहतर होना शुरू हुई। तो सिर्फ एक एंगल से नहीं देखना चाहिए, पूरी तस्वीर को देखना चाहिए। तो ये एतजाज साहब वाली बात जो अम्मार साहब के, उनको कुछ नहीं कहा जाता, तो यहाँ भी पिक एंड चूज है। बेसिकली मुझे जो लगता है कि हम माजी में यही होता है कि जब इस तरह की कोई चीज होती है, किसी एक एलिमेंट को पकड़कर खौफ फैलाया जाता है। तो यही हो रहा है अभी भी, ये भी। लेकिन मैं खुद ये कह रहा हूं कि किसी शख्स को सिर्फ ट्वीट करने पे कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये आजादी के इजहार के मुनाफी है। लेकिन ये अगर एक बाकायदा कैंपेन है फौज के खिलाफ, तो फिर इसको सीरियसली देखना चाहिए। बुखारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने शहबाज गिल को भी कहा कि नहीं बयान देना चाहिए था, और ये भी बहुत सख्त ट्वीट है। तो ये भी बहुत मतलब खुले दिल वाली बात है कि ये जब तक आप डिबेट करके अपनी चीजों की ठीक नहीं करेंगे, वो कैसे बात बढ़ेगी। बुखारी साहब, अब ये जो खौफ की फजा की बात की है अम्मार मसूद साहब ने, लगता है ये मुकदमात का इंदिराज, दूसरी चीजें, ये एक पॉलिटिकल प्रेशराइज करने के हरबे होते हैं, हर दौर में होते रहे, आप भी करते रहे, आपसे पहले वाली हुकूमतें भी करती रही हैं। इसका कितना असर हो रहा है आपके ऊपर, और क्या ये जो लॉन्ग मार्च की थोड़ा सा डिले हो रहा है, ये बार्गेनिंग, मतलब टूल ऑफ बार्गेनिंग के लिए है या इस प्रेशर का नतीजा? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अमार भाई की मैं बात करूं। अमार भाई ने बात गलत की है, फैक्चुअली गलत की है। वो ये कि नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा का नाम लेने के बाद उसके बाद नारा लगाया कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत देने वाला नारा इन लोगों ने बहुत पुराना लगाया था, इससे बहुत पहले, और सिर्फ जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया था, जनरल फैज का नाम लिया था। और फिर मरियम ने नारा लगवाया था, ये जो, और आप लोगों ने सब देखा है। फिर आप लोगों ने देखा कि मरियम ने ओपनली बोला कि ये 3-4 ऊपर वाले जर्नैल जो हैं, ये कोई इदारा नहीं होते, ये नीचे वालों का काम है कि हिलें। तो वो क्या था? अमार भाई ने उसके बारे में कोई बात नहीं की। तो ये ख्वाजा आसिफ ने जो असेंबली के फ्लोर पे बोला कि भाई इन लोगों ने हमारी हड्डियों से गोश्त नोच लिया, और इनकी क्या जुर्रत है कि आके डिफेंस का बजट इतना बड़ा मांगते हैं। फिर जो बात इससे की एहसन इकबाल ने की, फिर जो इससे अयाज सादिक ने की, फिर जो जरदारी साहब ने की कि तुम 3 साल के लिए आते हो, तुम कौन होते हो हमारा हिसाब लेने वाले, तुम कौन होते हो हमारे पे बात करने वाले, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो अमार भाई ने ना पीपल्स पार्टी की कोई बात की, इन्होंने ये जरूर बोला कि बाकी पार्टियां। लेकिन ये देखें, जब तक एक तजिया, अभी देखें मैं बैठा हूं ना, मुझसे अगर कोई मुझसे ओपिनियन लेगा कि अमार भाई कैसे तजिया निकाल रहे हैं, मैं कहूंगा कि वो तासुब की बुनियाद पे तजिया करते हैं। मैं माफी चाहता हूँ अमार भाई नहीं है, और वो पीटीआई के मुखालिफ बातें करते हैं, और पीटीआई की जो बातें उनको ज्यादा नेगेटिवली ट्विस्ट करके और नून वालों की बातों को करके फिर कहते हैं कि ये तो होता रहता है। तो मैं आपको दूसरी बात, नवाब ज़ादा साहब कह रहे हैं कि अम्मार साहब न्यूट्रल नहीं है, यानी
नहीं, देखिए फौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, मैं इस बात के हक में नहीं, मैं आपको वजह बताता हूँ। फौज अगर न्यूट्रल हो जाए, और फौज का हल्फ है कि हम अंदरूनी और बैरूनी दोनों खतरात से हम जंग करेंगे, ये हल्फ है इनका। और ये हम लोगों का भी हल्फ होता है जब हम मिनिस्टर्स बनते हैं या एमपीएस बनते हैं कि कोई राज जो हमें बताया जाएगा, हम किसी गैर मुतल्लका बंदे तक वो बात राज नहीं पहुंचाएंगे। तो वो मिफ्ता इस्माइल ने भी और शहबाज शरीफ दोनों ने जाके नवाज शरीफ से जो एक मफरूर थे हैं और एक मुजरिम है, उनसे जाके डिस्कस किए स्टेट सीक्रेट्स। फिर ये लोग नाम क्या देते हैं, वो हमारे पार्टी के कायद है। वो भाई फिर हल्फ के अंदर लिख दो कि पार्टी का कायद चाहे मुजरिम हो तो हम लोग करेंगे। तो मुजरिम है तो साइकिल चोर को भी पकड़ लो मेरे भाई। चले बुखारी साहब लॉन्ग मार्च पे आ जाए, लॉन्ग मार्च के ऊपर बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जो हमारा आइन है इसको मजाक बना दिया गया है। इसके बेहतर है कि एक सेंटेंस वाला, एक जुमले वाला आइन हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यार मैं एक ट्वीट किसी का पढ़ रहा था, वो अगेन मैं ख्याल एतजाज एहसन का है किसी का, इतना खूबसूरत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सीधी सादी इस मुल्क में वही बात। वैसे एतजाज एहसन साहब आजकल आपको ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे होंगे बुखारी साहब। नहीं, मुझे हमेशा अच्छे लगे, हमेशा अच्छे लगे। वजह ये कि एतजाज एहसन बड़ी खुल के बात नहीं, पीटीआई के खिलाफ भी जब बात करते हैं ऑनेस्ट टू गॉड, एक मेरिट पे वो होते हुए वो जुमले दे। पीपल्स पार्टी उस लिहाज से पीपल्स पार्टी के कई लीडरान ऐसे हैं जो बहुत कल्चर्ड है। चलिए सब लॉन्ग मार्च डिले होने की वजह सर अगर नहीं, लॉन्ग मार्च के अनाउंसमेंट टाइम का कोई तयन, देखिए कोई तयन नहीं किया था कि कब हो। वो खान साहब की गिवन डेट गिवन प्लेस के ऊपर होगी, क्या कर रहा है। और देखिए अमूमन कहते हैं कि इसके अंदर ये खतरा है, ये खतरा है। अगर होता तो जब हम लोग 25 मई को इस्लामाबाद पहुंचे थे तो इतने लोग थे कि इस्लामाबाद की कम से कम ब्लू एरिया को हम जला के तबाह करके रख देते, लेकिन एक दरख्त को आग नहीं लगाई, एक शीशा हमने नहीं तोड़ा। जिन दरख्तों को आग लगी पूरी ग्रीन बेल्ट जला दी आपने बुखारी साहब, सारी ग्रीन बेल्ट। वो शेलिंग की वजह से वो दरख्तों को आग लगी। अगर 3-4 दरख्तों को आग लगानी थी तो हम सबको लगाते, लेकिन लॉजिक मंतक की बात है ना, जाहिलाना बात ना। ठीक। अच्छा नवाब साहब, आज भी आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, वहां क्या माहौल है? कोई खौफ है इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का? नहीं, हमारी मीटिंग थी। प्राइम मिनिस्टर साहब तो मुल्क से बाहर हैं, तो किसी किस्म का देखें खान साहब का राइट है, अगर वो जमहूरी उसमें अंदाज में आना चाहते हैं, उन्हें हक है मार्च करने का। और अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेते तो किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। और बुखारी साहब कहते हैं हमने पहले भी कुछ नहीं किया, हजारों लाखों लोग थे इस्लामाबाद के अंदर, कोई एक दरख्त नहीं जला, कुछ नहीं हुआ। देखिए वो मैं बात करूं या बुखारी साहब कहें या कोई और साहब बात करें, वो सब टीवी की आंखों से पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब उस बहस में पढ़ना फजूल है। सारी दुनिया ने टेलीविजन पे देखा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और उस वक्त की एक चीज डिसाइड थी कि 9 पार्क तक रुकना था, अगर वहां पे नहीं तो फिर वो डी चौक की तरफ आए जहाँ पे फिर ये सारा मसला हुआ। तो मेरा ख्याल है अगर कानून को हाथ में न लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह पाबंद किया था 9 पार्क तक, तो कोई मसला नहीं है जी। ठीक है, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अम्मार मसूद साहब, नवाबजादा इफ्तिखार साहब और यावर बुखारी साहब मेरे मेहमान हैं। लास्ट सेगमेंट है, मैं चाहूंगा कि तमाम मेहमानों की राय शामिल हो जाए। अम्मार साहब, अब ये सुप्रीम कोर्ट में आज चली गई है वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब की तौहीन अदालत, ये आपको लगता है कि ये इसलिए गए कि ताकि आइंदा वाला जो अब लॉन्ग मार्च, जो मुतवक्का लॉन्ग मार्च है, उसके लिए भी हुदूद का तयन कर दिया जाए इस बेस के ऊपर, और हुकूमत जो है वो अदालत के कंधे पर रखकर ये फैसला करवाना चाहती? देखिए, वो जो कुछ हुआ था वो जाहिर है अदालती अहकामात की सरीहन खिलाफवर्जी थी। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, हमें पता है उस दिन क्या हुआ था यहाँ पर। और वो जो है, और उससे पहले बहुत सारे बयानात आए थे कि हम असला लेके आ रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी बयानात थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी का नाम लेके नाम बता दो प्लीज अमर भाई, बहुत सारे, बहुत सीरियस है, किसी एक का नाम बात किसी एक का नाम आप तो ये बात करने देंगे ना मुझे? अच्छा हाँ जी, आप कर अभी जो है
اسی خوف سے، اور پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو ہیں کسی ڈی چوک سے نہیں جائیں گے، یہ ایک خاص جگہ پر رہیں گے، اور پھر اس کے بعد انہیں جو ہے بڑے مزے سے انہوں نے وہاں پہ ڈی چوک تک چلے گئے۔ بعد میں یہ اس کی وجوہات نکالی گئیں کہ پتہ نہیں چلا، عدالت نے بھی کچھ نہیں کہا۔ اب حفاظتی اقدامات کے طور پر، اور ہم نے دیکھا کہ شہر کا اس دن کیا حلیہ بگاڑا تھا، کس طرح درخت نظر آتش کیے گئے تھے اور کس طرح پولیس والوں کو مارا گیا تھا، اور بدتمیزی بھی ان کے ساتھ کی گئی تھی، جبکہ اینگل یہ لیا گیا تھا کہ نہیں جی پولیس نے بڑا تشدد کیا، پولیس نے بڑا مارا، ٹیئر گیسنگ ہوئی ہے۔ اب ویسے ایک اور واقعے کا ذکر کر دینا چاہیے، ابھی پشاور میں جو احتجاج ہوا اساتذہ کا پرائمری ٹیچرز اسکول کے ہیڈ ماسٹرز کا پرائمری اسکول کے، ان کو بہت مارا گیا، ان کے اوپر لاٹھی چارج بھی ہوا، اور 8 سے 12 جو اساتذہ ہیں وہ زخمی بھی ہوئے، ان پہ ٹیئر گیسنگ بھی ہوئی، اور یہ اس صوبے کی بات ہے جہاں 10 سال سے تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ یہاں پر آتے ہوئے ظاہر ہے اگر کوئی حکومت اس طرح کے اقدامات کرے گی عام آدمی کی شہری کی حفاظت کے حوالے سے، تو اس کو دوسری طرح سے کیمپین کی صورت دی جائے گی۔ تو میرے خیال میں وفاقی حکومت اس دفعہ پہلے ہی عدالتی احکامات لینا چاہتی ہے کہ وہ ایک خاص ایریے سے زیادہ چیز آگے نہ بڑھے، اور یہ بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جو احتجاج ہے وہ جمہوری حق ہے، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی جماعت کرے بالکل کرے، لیکن جیسے ہم نے دیکھا کچھ احتجاج، جیسے مولانا فضل الرحمان کا احتجاج تھا، میں خود اس میں گیا تھا اس کو کور کرنے کے لیے، اس قدر منظم وہ احتجاج تھا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا، جہاں سٹیج پہ کہا جاتا تھا کہ آپ سارے لوگ آرام سے بیٹھ جائیں، پن ڈراپ سائلنس ہو جاتا تھا۔ یہ جب سچویشن پیدا ہوتی ہے، جب تحریک انصاف والے ہوتے ہیں، تو یہ وائلنس ہی کرنا چاہیے۔ ہاشم ڈوگر صاحب کا جو واقعہ ہوا پنجاب کے حوالے سے، کبھی سنا گیا کہ استعفیٰ لیا گیا، کبھی سنا گیا کہ استعفیٰ دے دیا گیا، اس کے پیچھے بھی یہی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ جو اس طرح کے پرتشدد قسم کے مظاہروں کا پارٹ نہیں بننا چاہتے تھے پنجاب حکومت کے طور پر، تو وہ ظاہر ہے کہا کہ ہم سپورٹ نہیں کریں گے کہ پولیٹیکل پارٹی کا مارچ ہے تو پنجاب گورنمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہوگا، یہ انہوں نے میں جواب دے دوں ذرا بھی تھوڑا سا۔ جی یاور صاحب، دو باتیں مجھے، ایک تو یہ کہ اگر عدالت آپ کو کہتی ہے جس طرح پہلے کہا گیا جی فلاں مقام تک آ جائے، تو پھر آپ کو اسی مقام تک آپ محدود رہیں گے، کہیں پچھلی دفعہ والی صورتحال تو نہیں ہوگی، اور اس سے انڈیکیشن یہ بھی ہے کہ شاید گورنمنٹ آپ کو روکنا نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے آپ آ جائیں اسلام آباد لیکن باہر کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور دھرنا دیں۔ اگر ایسا نیگوسیشن ہو جاتی ہے، آپ اپلیکیشن دیتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں جی انتظامیہ کو دیں، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات؟ دیکھیں احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، یہ جمہوریت کا درست حسن بات ہے، اختلاف رائے، اور ہم لوگوں نے ان کو الاؤ کیا تھا۔ ڈی چوک میں آ کے 2 جلسے کیے تھے، ہم لوگوں نے فضل الرحمان صاحب جب آئے تھے ہم نے کہیں بھی کوئی کنٹینر نہیں لگایا، ان کو تھرو آنے دیا، پی ڈی ایم نے جب کیا ہم نے تھرو آنے دیا۔ جو امار بھائی بات کر رہے ہیں اسلام آباد میں کہ جو ہم لوگوں نے پی ٹی آئی نے بقول ان کے کہ جو تباہی مچائی، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ گواہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کلامی کر رہے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھے الفاظ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ جب میں وہاں پہ موجود کہتے ہیں پشاور میں آپ نے آنسو گیس چلائی، لاٹھی چارج کی، شیلنگ کی، سن لیں میری بات سنیں اسلام آباد کے بارے میں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس درخت کو آگ لگی وہ پولیس کی شیلنگ سے لگی، وہ سیلنگ کے خلاف ٹہنیاں کاٹ کے ان ٹہنیوں کو الگ رکھ کے آگ لگائی گئی کہ وہ دھواں جو ہوتا ہے وہ ٹیئر گیس کے دھوئیں کو ڈیسیپیٹ کرتا ہے اور اس کا وہ ڈیڈلی اثر نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں گواہی دے رہا ہوں، بحیثیت اولاد رسول میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ غلط بات کی، مجھے دکھ ہوا۔ اور ہم لوگوں نے مجھے بتا دیں کہ کہاں پہ اسلام آباد میں تباہی مچائی، کون سی دکان کی شیشے توڑے، بقول ان کے باقی اینکرز جو باقی ان کے بھائی ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ وہ جی F6 کے اندر جو کلثوم پلازا کے سامنے میٹرو کا اسٹیشن ہے وہ سارا تباہ کر دیا، جلا دیا، شیشے توڑ دیے، ایک شیشہ نہیں ٹوٹا تھا، جھوٹ نکلا۔ ابھی ٹی وی پہ بیٹھ کے خدا کا واسطہ ہے یار، اللہ کا واسطہ ہے، کم از کم مطلب کسی انسان کے بچے سے پوچھ کے بات کریں۔ آپ وہاں پہ تھے ہی نہیں، اگر آپ ہوتے تو آپ میری بات سے اختلاف نہ رکھتے۔ جہاں تک پولیس کی بات ہے، پولیس جب آپ کے اوپر ڈائریکٹ لاٹھی چارج کرے گی تو آپ اپنے آپ کو بچائیں گے،
बचाने में पुलिस आपको 6 डंडे लगाएगी, आप उसको 3 धक्के देंगे, क्योंकि आपके हाथों में डंडे नहीं होते हैं, आपके पास असला नहीं होता है। मैंने बोला एक नाम बताए कि जिसका बयान था कि हम असला लेके आएंगे, क्योंकि इन्हें गलत बात, इनने मुझे अफसोस के साथ कि इन्हें झूठ बोला। शेख रशीद ने एक बात कही, और वो बात शेख रशीद कर रहे हैं यार कि भाई ये बड़ा खूनी मार्च हो सकता है। किससे बोला कि हम असला लेके आएंगे? एक तजिया निगार ऐसी बात करे और झूठी बात करे, अफसोस है। मैं जहां तक टीचर्स की बात है पेशावर में, मुझे अफसोस है, इनको नहीं टियर गैस शेलिंग करनी चाहिए थी, उनके साथ नेगोशिएट करना चाहिए। हर बात का आखिरकार आखिरी जो स्टेप होता है वो नेगोशिएशन होता है। तो हमारे जो टीचर्स हैं इनको भी रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। माँ बाप के बाद ये माँ बाप, इनकी इज्जत, इनका तकद्दुस हम पे वाजिब है। हमें तरीका ये जो आपने कहा कि निगोशिएशन है हर बात का हल, तो फिर यही हल जो इस सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका हल भी तो निगोशिएशन है, जिस तरफ आप जा ही नहीं रहे हैं। अब मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। देखिए हम क्यों नहीं जा रहे, आप हमसे ये पूछा, आपसे एक सादा सवाल करके क्यों नहीं जा रहे, तो आपको जाना चाहिए, बिल्कुल हमें जाना चाहिए। हम जाएंगे, इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, क्योंकि आप अभी मैं टीवी के ऊपर क्या क्या बातें करूं, फिर वो अमार भाई उस बात को बाद में किसी और टीवी प्रोग्राम बैठ के किसी और तरीके से ट्विस्ट कर देंगे। देखें हमने जिसको फोन किया वो कहते हैं हमें फोन करवा दो। अभी इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं आपको? अभी समझ आ रही है? अमार भाई को मैं वो रिकॉर्डिंग सुना दूं तब वो मानेंगे ये बात। देखें ये मुझे मत बोलें कि ये नून ने ये नो कॉन्फिडेंस मूव अपने सर पे किए या पीडीएम ने किए, इनकी इतनी औकात ही नहीं है उस वक्त की हुकूमत को गिराने की। सिर्फ और सिर्फ ये जितने हमारे एलाइज हमसे टूटे हैं, इनको जब फोन किया गया उन्हें कहा हमें फोन करवा दो। अभी इसके, और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ही बात कर रहा हूं, अभी मुझे बताया उसके बाद क्या रह जाते हैं। ये कहते हैं कि नहीं थे, बिल्कुल थे, बिल्कुल मुलव्विस थे, लेकिन हम लोग कभी इन बातों पे ना रोए, इनसे आगे चले। हमारी एक वो कहते हैं ना कि हम लोग एक गयूर कौम है, लेकिन हम गयूर का मतलब भूल गए हैं। हम एक ताकतवर कौम है, हम ताकतवर का कहते हैं जो हो गया माजी हो गया, अब आगे चले ताकि चीजों को ठीक करें। नवाज साहब चीजें दोबारा नहीं होनी चाहिए। देखिए कल अगर नून की भी हुकूमत है तो इस तरीके से एक साजिश के तहत मुदाखलत करके उसकी हुकूमत को नहीं गिराना चाहिए। मैं इसको गलत समझता हूँ। ये उनकी टर्म पूरी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं ना मार साहब, वो कह रहे हैं फोन करवा दो, अभी भी कह रहे हैं फोन करवा दो, अब फोन हो जाएगा तो मामला हल होगा। वो कहते हैं फोन बंद करवाए आपने, डेमोक्रेसी को चलाना है तो। नवाज भाई ने फोन की थी, सारी बात सुने ना, ये अमार भाई ने फोन की नवाब दादा साहब ये फोन जो आपके पास आ रहे हैं आप भी बंद करें ताकि कोई निगोशिएशन हो सके। नवाज साहब लास्ट कमेंट सर। जी मैंने पहले भी अर्ज किया कि नेगोशिएशन का सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म असेंबली है। असेंबली में आए, बैठे, वहां पर बैठ के जो भी बात करनी है उसी प्लेटफॉर्म पे करें, और कोई ऐसा मसला नहीं जो हल ना हो सके। जब आप कहते हैं इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, हम नेगोशिएशन के लिए बैठ जाएंगे। नहीं, अगर आप कंडीशनली करेंगे तो फिर कौन तैयार होगा? हम कहेंगे नहीं कि आप ये करें वो करें, तो फिर वो नेगोशिएशन किस चीज के होंगे? तो उसका तरीकाकार यही है कि स्टेप हम पीछे हटें, कुछ ये पीछे हटें, वहां पे बैठ कर तमाम मामलात को डिस्कस करें अपने मुल्क और कौम के इंटरेस्ट में। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाबजादा इफ्तिखार साहब, अम्मार मसूद साहब और यावर बुखारी साहब, तमाम मेहमानों का। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।